Yes, In sir. our last class, we started the comprehension junction. In comprehension junction, we read this paragraph, this passage, and thereafter we are supposed to give the answer for all these questions. One of the questions also one of the first question already we have discussed in our last class. So let us start for the session. Let us start the session for today. Let us find the answers from the story. The first question is objective type question. That means we have to pick the correct option. Who welcomed Minnie, Grinny and Stocky to the ocean by jumping straight up in the air and bouncing the bubbles around? Dolphin, crab, oysters or lobster? Which one is the correct option? Dolphin. 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 Students are telling that this is the dolphin. All the students are telling the dolphin. Yes, sir. Yes. Yes, sir. डॉल्फिन was the correct answer. डॉल्फिन जो ही है डॉल्फिन ही जाकर के कहीं कहीं मिनी ग्रीनी और भी जो परसूस है उनकी हेल्प किया था. The next question is which animal in the ocean has a lighted prod? Which animals in the ocean has a lighted prod? Dolphin या whale या anglerfish या octopus? Sir, anglerfish. Sir, anglerfish. Yes, anglerfish is the correct option. Yes. बहुत ही पैसे से उठा करके डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है. डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है. ऐसा नहीं है कि ज्यादा आपको कुछ दिमाग लगाना है. जिन्होंने भी पैसेज प्रॉपर्ली पढ़ा है, ध्यान से समझा है, वो इसको बता सकते हैं. जिनको ध्यान है, जिनको नहीं ध्यान है, वो भी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ करके पैसेज ओपन करके दोबारा खोल के इसका डायरेक्ट आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा. ऐसा ही है ना? Now the next one is which animal in the ocean grow like trees? Which animal in the ocean grow like trees? Coral. Corals is the correct option. Yes. Corals is the correct option. I hope it was the easy for you all. और आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. Now moving ahead. The second question. बेटा किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? कौन है? सावित्री पाल बेटा अपना माइक प्लीज बंद कर दें. फिर आप जब बोलें तब आप ऑन करें, फिर बंद कर लिया करें. चलिए ठीक है. Now the next question is choose the right word from the box and write it in the column A to match its synonym and antonym. What you all have to do? There is a word. यहाँ पे एक particular word दिए हैं कॉलम में. इन कॉलम्स को strong जिसका synonym है weak, या which one of the word is there in this box? Rap, mighty, wide, arise, huge, high. कौन सा word होगा जिसका synonym strong होगा लेकिन antonym weak होगा? So you all need to tell the correct answer. So let us start. Which option strong music तरीके से काफी मजबूत? बेटा अनुप्रिया लॉट्स ऑफ वॉइसेस आर देयर. आपके यहाँ पे आ रही है. आपका फोन इधर उधर हो रहा है क्या? ये खट्टर पटर हो रहा है. इट इज नॉट अ गुड वे. डिस्टर्बेंस होता है. आप जैसे बच्चों से फिलहाल नहीं एक्सपेक्ट किया जाता. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा. आउट ऑफ दीज बॉक्सेस देयर आर 6 वर्ड्स. आउट ऑफ दीज 6 वर्ड्स व्हिच वन ऑफ द वर्ड इज दैट इज हैविंग अ सिमिलर मीनिंग एज स्ट्रांग? जिसकी स्ट्रांग की जो मीनिंग है सिमिलर मीनिंग कौन से वर्ड्स की है? What you all can do, you all can show the for the first word you can show one finger. Mighty के लिए 2 words, 2 fingers. Wide के लिए 3 fingers. Arise के लिए 4, 5 and 6. In the same way you all can give your answer. Okay. Most of the students are showing 2 fingers. Most of the students are showing 2 fingers. That is the mighty. Yes, mighty मतलब एक तरीके से शक्तिशाली होता है. It is the correct one. It is the correct one.
miking. Which one? What is the next? What? Now you all have to choose that which one of the word out of these 5 words, which one of the word is the which one of the word is having the similar meaning as what? बेटा एक बात और आपको मैं समझाता हूँ. कई बार होता है कि जैसे what means अगर आप लोग को नहीं पता, इसका अगर आपको मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? In this case you have to ask, you have to find out the opposite. ऐसे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जिसका इसके अपोजिट मीनिंग निकलता हो. टाइनी मीन्स तो आपको पता होगा, तो टाइनी का अपोजिट क्या हो सकता है? Which one of the correct? Sir, west. बेटा nobody have to speak. टाइनी का अपोजिट तो ऑब्वियस की बात है कि वॉट होगा. यहाँ पे सिनोनिम है, एंटोनिम है, यानी जो वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे इसका ये सिमिलर मीनिंग होगा और ये अपोजिट मीनिंग होगा. So out of these 6 options, which option should be right here? Which word is having the similar meaning as what and the opposite meaning as tiny? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Most of the students are showing 3 fingers. Why? Okay, 3 fingers. People. Okay. Let me check one more thing. How many students? Okay, most of the students are showing. Beta, some of the students are showing 1 finger, some are showing 6 fingers. Many students are showing 6 fingers. Many of the students are showing 3 fingers. बेटा तनिष्का आपका 5 फिंगर दिख रहा है शायद. चलिए ठीक है. अस्मित, दिव्या, सावित्री पाल ने वीडियो ही बंद कर रखा है. चलिए रुचि showing 5 fingers. Okay, no issue. Let me confirm you all. बेटा टाइनी में छोटा, वाट में बड़ा. जो हाई बता रहे हैं या ह्यूज, अगर आप देखें हाई या ह्यूज. हाई मतलब एक तरीके से ऊंचा जो अभी यहाँ पे आ रहा है, या बड़ा एक तरीके से. ह्यूज मतलब एक तरीके से बड़ा. हाई मीन्स ह्यूज मीन्स बड़ा होता है. दिस इज ए ह्यूज बॉक्स, बहुत ही बड़ा बॉक्स. तो ह्यूज वुड बी द करेक्ट आंसर. हाई मीन्स ज्यादा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, बट हाई और ह्यूज में जब आप देखेंगे तो ह्यूज मीन्स बड़ा होगा. हाई मीन्स कई बार हम लोग बड़ा मतलब निकालते हैं के हिसाब से, बट ह्यूज और हाई में जो ह्यूज होगा इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर द बिग वन. कि बड़े के लिए अगर कुछ यूज करना हो तो ह्यूज, तो हाई तो आप ह्यूज यूज करेंगे. ये ऊपर वाला भी सही से नहीं लिखा है ना, उसको लिख देता हूं. Now it's fine. Now the next one, cover. Now we all have to find out the similar meaning. We have to find out the similar word as cover, but opposite. It should be opposite of open or unwrap. बहुत इजी आ रहा है, इसी से ही इसका अपोजिट खोज लीजिए. इजिली है. Which one is the correct answer? इसका तो सही आंसर सभी को बताना चाहिए. आई होप गलती तो नहीं होनी चाहिए. Yes, all the students are correct. All the students are correct. जब आपको इस तरह की क्वेश्चंस मिले तो सबसे ज्यादा इजी. अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं आ रही है तो इसकी आ रही होगी, इसकी नहीं आ रही है तो इसकी आ रही होगी, लेकिन मिल जाएगा कि ओपन या अनरैप का अपोजिट क्या होगा. अनरैप का रैप. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? Wrap. ब्रॉड और नैरो. ब्रॉड, नैरो. ऑब्वियसली नैरो मीन्स बहुत पतला, ब्रॉड मीन्स चौड़ा. वाइड मीन्स क्या होता है? राइट मीन्स पहुंचना. हाई मीन्स मैंने बोला कि ऊंचाई या फिर लंबा, बड़ा. तो व्हाट इज द करेक्ट? विच वन ऑफ द इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑल द स्टूडेंट्स आर शोइंग 3 फिंगर. दैट इज करेक्ट. वाइड इज द करेक्ट ऑप्शन. वाइड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस. नाउ द नेक्स्ट वन, टैल. वाइड भी हो गया आपका. विच वन इज द रिमेनिंग? हाई एंड राइट इज रिमेनिंग. तो मैंने जैसे बताते हाई फॉर द टैल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. एंड फॉर रीच, रीच मीन्स पहुंचना, डिपार्टमेंट जाना. तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डिपार्ट मतलब कहीं जाना. यहाँ का आप डिपार्ट कर चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन
आने में यानी पहुंचना के लिए अराइव होता है, डिपार्चर का अपोजिट अराइवल होता है, डिपार्ट का अपोजिट अराइव होता है। अराइव यानी पहुंचना, रीच में पहुंचना, अराइव में एक तरीके से होता है आगमन। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। Shall we move on to Yes, the next sir. question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the third question is, answer these questions. Who feels seasick and why? Who feels seasick and why? Can anyone tell me the answer? कोई भी एक बच्चा बताए, वन बाय वन। जब एक बच्चा बोलना शुरू करे तो फिर बीच में कोई टोकेगा नहीं, कोई भी बताए जो भी पहले बताना चाहे। Stalky feels seasick because the waves guide the bubbles deep underwater, and Stalky is excited as full of his sweep past in perfect formation. एक बार देखें, where you can find out the answer of this one. Who feels? Sir, 94. Sir, second. 90. 4 पे second. Stalky sticks his head. In which paragraph बेटा? Sir, second. Sir, word spread वाले paragraph. Yes, sir. What is spread among the others? Word spread among. Sorry, ये वाली paragraph. One more thing, ये spread नहीं है, ये spread है. Word spread among the other ocean creatures that the Atlantic has been associated. The dolphin jump straight up in the air to welcome them. Dolphin jump straight up in the पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए. While bouncing the bubbles around, Minnie and Jimmy think it's fun, but Stalky feels seasick. कौन फील किया था? Stalky feels seasick. That means कि आंसर भी आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है, क्वेश्चन में से ही, पैसेज में से आपको आंसर मिल जा रहा है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। तो लेट अस स्टार्ट। क्या लिख सकते हैं जी? स्टॉकी फील्स, स्टॉकी कौन था? बर्ड था, क्या था? The bird. The bird था, bird. स्टॉकी, द बर्ड है seasick. ठीक है, एंड वाई, देयर इज अनदर क्वेश्चन, वाई, क्यों हुआ था? इसका आंसर कौन बताएगा? Who felt seasick? Stalky, the bird felt seasick, but why? Books, I have to look out your books. Books यहाँ पे नहीं है, just wait. How we can find out the answer? Let's say यहाँ पे क्यों, देखो, from this passage, from this paragraph also we have to find out that why Stalky feels seasick. क्या हुआ था? What is among the world's ocean creatures that the Atlantic has been special guest? The dolphin, because the dolphin jumped straight up in the air to welcome them while bouncing the bubbles around. जब ये डॉल्फिन, जब यहाँ पे था डॉल्फिन, वेल, बिकॉज, जब आप यही आपको लिखना है, चलिए ठीक है, इसको दूसरी तरीके से, डॉल्फिन जंप स्ट्रेट अप इन द एयर टू वेलकम देम while bouncing the bubbles around, because अब यहाँ पे why Stalky feels seasick? Because the dolphin jumped straight up in the air to welcome them while bouncing the bubbles around. जब ये डॉल्फिन ने जंप किया तो मिनी और ग्रीनी जो थे, इन लोगों को तो मजा आया, they were feeling that it's a fun, but जो स्टॉकी था, she feels
सी से जो स्टॉकी जो बर्ड था वो उसको कहीं ना कहीं घबराहट महसूस हुआ. ओके, तो सेम आंसर यू ऑल कैन राइट फ्रॉम हियर टू हियर. बिकॉज लगा के वाई का आंसर लिख ले जाएंगे. Yes, sir. चलिए, now moving on the next question. Question number 2. What happened when the shark opened its mouth to bite through the bubbles? What happened? क्या हुआ? When the shark opens its mouth, जब जो शार्क ने अपना माउथ ओपन किया to bite through the bubbles, वो बबल्स के थ्रू उनको खाने की कोशिश किया, क्या हुआ था? Can anyone? Yes, Anupriya. When the shark opened its mouth to bite through the bubbles, he and her friends began to shake with fright. Yes. Let us see what happened. आप अपने पैसेज नहीं देखें, आप सभी लोग को भी आसान हो जाएगा. In which what happened, where we can find out the answer of this question. Yes. What happened? The Atlantic lifts the bubble. Atlantic lifts the bubble. Shark starts circling them. जो shark है वो एक तरीके से उनकी तरफ मरनाने लगे. Just as one of the shark opens its mouth wide and bites through the bubbles. तभी क्या हुआ? What happened? यहाँ पे लिखा हुआ है. क्या लिखा है? A whale pushes it aside. The octopuses and the squid start cloud hopping at the shark. Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ से मिल गया. अब आप इसी आंसर को आपको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर हाउ यू ऑल नीड टू फाइंड आउट योर आंसर. अगर आंसर को खोजना है आप लोग अपने मर्जी से भी खोज के किसी का भी आंसर लिख सकते हैं. आई होप ज्यादा नहीं सॉल्विंग. What happens? So should I write here और आप लोग लिख ले जाएंगे? सर लिख ले लिख लेंगे. A whale pushes the shark aside and the octopuses and squids squirt clouds of ink at the shark. The next question is, who does the Atlantic Ocean have a problem with? Who does the Atlantic Ocean have a problem with? जब तक आप लोग इसका आंसर आप लोग पैराग्राफ में खोजिए तब तक इसके ऊपर वाला आंसर मैं लिख ही देता हूँ. Yes. A whale pushes the shark. Aside अभी and the octopus. ऑक्टोपस और कौन था? ऑक्टोपस एंड स्क्विड. And squid. Squid. ठीक है. A whale pushes the shark aside and the octopus and squid squirt clouds of the ink at the shark. Now the next question is, who does the Atlantic Ocean have a problem with? Who does the Atlantic Ocean have a problem with and why? What is the answer of this question? Sir, the Atlantic problem is ocean. Atlantic Ocean have a problem. क्या लिखेंगे? The Atlantic Ocean have a problem.
have a problem of man because of the man. man killed the fish yes and sir plant and he catch too many fishes and kill beautiful fishes, shark and मैन bird. लिखे या ह्यूमन बीइंग लिख दें? The the man. मैन The मैन लिखा man. है। yes sir And why? because Because the man Because killed the fish the Because man लिखेंगे and he catch आप बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं। एज दे आर क्या करते हैं? kill the kill fish me many fish and plants and catch too many fish, kill me beautiful whale and shark. and They are all too many Kill my beautiful whales and sharks. and kill they always Atlantic. dumping Yes sir and unflown and unclean fall and unclean waste into एंड अनक्लीन जो वेस्ट होता है, जो गंदे वेस्ट होते हैं, वो भी उन्हीं के बीच में डालते रहते हैं। वेस्ट इनटू द ओशियन। अभी बेटा थोड़ा सा हम लोग की प्रैक्टिस नहीं हुई लिखना, इसकी वजह से राइटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। धीमे धीमे अभी आपका जो नया सेटअप है, तो अभी कुछ दिन लगेंगे इससे होने में। एक लाइट की फोकस लाइट होना चाहिए चेहरे पे, जिससे कम से कम आपका टीचर भी प्रॉपरली दिखे। इट विल बी अरेंज। लेकिन फिलहाल जब कल नहीं परसों से, कल से तो फिलहाल 6-7 से स्कूल ओपन हो रहा है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन में ही वो लाइव वगैरह की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जब आपको क्लास में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग का भी क्लासेस 1 मार्च से शुरू हो रहा है, उस समय ऑनलाइन क्लासेस बंद होकर के ऑफलाइन ही शुरू होंगी। तो आई होप yes sir नंबर सी हो गया। अब नाउ मूविंग अहेड ऑन द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, डिस्क्राइब द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को आपको डिस्क्राइब करना है। हाउ वी कैन राइट द आंसर? अटलांटिक ओशन के बारे में तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं। ओके, show me your hand who want to tell about the Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशन के बारे में कौन कौन बताएगा? सौरभ कनौजिया बताइए। सौरभ कनौजिया बताइए बेटा। Sir, the Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is more than 71 million square kilometers and more than 4,000 kilometers wide. It in the Atlantic Ocean have many fishes and it is very big. बहुत बढ़िया। May I tell? यस अनुप्रिया, आप बताइए। Sir, the Atlantic Ocean is more than 71 million square kilometers and it is the second largest ocean in the world. North and South America on one side and Europe and Africa on the other side. And the north and south are cold and icy. It is more than 4,000 kilometers wide at some places. वेरी गुड। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? और भी कोई बताना चाहेगा? So may I tell? यस अमन वर्मा, यू कैन स्टार्ट। The Atlantic Ocean is 71 million square kilometers and the Atlantic Ocean is the second largest river in the world and many beautiful fishes live in Atlantic Oceans. वेरी गुड बेटा। आपके इसी पैसेज में ही आप इसका आंसर छिपा हुआ है। आप इसी पैसेज में से भी आप लिख सकते हैं Yes, इसका sir. आंसर। अगर आप चाहें तो ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल और योर एल्डर वन टू राइट अबाउट द अटलांटिक ओशियन। फिलहाल आपके पैसेज में से आप कैसे लिख सकते हैं, कहीं मतलब टुकड़ों में अटलांटिक ओशियन के बारे में चीजें बताई गई है कि किस तरह के क्रिएचर्स रहते हैं वहां पे, इसका मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियंस है। लेट अस हाईलाइट सम ऑफ द
what we can write? It is I am more than well, and it is 70 million square kilometers, and it is the second largest ocean in the world. I am मत बोल देना. It Yes, is sir. the Atlantic Ocean, and other one is there North and South America is one of the side Africa. ये यहाँ से लेकर के पूरा माई नॉर्थ को आपको चेंज करना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि आप माई नॉर्थ लिख दें. इन माई नॉर्थ आप ऐसे लिख सकते हैं. इन माई And नॉर्थ north and एंड south. साउथ माई नॉर्थ आप ऐसे लिख सकते हैं. द नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑफ द अटलांटिक ओशियंस आर कोल्ड एंड आइसी. इसको आपको ध्यान देना है. माई नहीं लिखेंगे यहाँ पे. फिर it is more than 4,000 kilometer wide at some places. So these are the things what you all can write into your own language. Okay. थोड़ा सा pronoun की में चेंजेस करते होंगे because जो यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप लोग बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि it has been written in the direct speech form. जब आप indirectly लिखते हैं, जब आप reported speech के फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपका जो pronoun है वो चेंज होता है as per the reporting verb. Yes, sir. अब उसमें कई सारे क्रिएचर्स की भी बात किया गया जैसे वेल हो गया, शार्क हो गया. ऑल्सो यू ऑल कैन राइट अबाउट दैट. तो आप लोग इसको अपनी मर्जी से लिख लेंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन राइट? सभी लोग लिख लेंगे या फिर मैं कोई सजेस्टेड आंसर लिख दूं? ओके सर लिख लेंगे. आप लोग को लिख लेंगे. मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ. ऑलरेडी आई हैव हाईलाइटेड. यू ऑल कैन राइट फ्रॉम हियर विद द हेल्प ऑफ दिस वन. इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल. So let us moving ahead to the next question. The next question is why does Greeny Gulf? Why does Greeny Gulf? क्या होगा इसका आंसर? आप कह सकते हैं कि ग्रीनी गल्फ राइट एट द वास्ट साइज ऑफ द ओशियन. जो बहुत ही बड़ा साइज ओशियन का था उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो ग्रीनी फ्राइट हो गया था. Yes, sir. ऑल कैन राइट ग्रीनी गल्फ इन फ्राइट. बेटा ये आपके ऊपर है. आप क्यों घबरा गया था? ये आपको अपनी मर्जी से. इसका आंसर आपको बुक में नहीं दिया हुआ है. इसका आंसर आपको अपनी मर्जी से Yes, देना है. अमन वर्मा, Yes, sir. what do you want to say? Sir. Give me the answer. Sir, Yes, Aman Greeny Verma. Gulf because he's a frog and he's the first time to know water. Yes. Or it is also it also may be the correct answer. बेटा इसका आंसर आपको डायरेक्टली आपके पैसेज में है नहीं क्योंकि वहां पे क्यों इस तरह से ग्रीनी ने फील किया. तो वो रीजन आपको अपने मर्जी से लिखना है. यू ऑल कैन राइट योर आंसर. ग्रीनी गल्फ आप कुछ भी लिख सकते हैं. जो अमन ने बताया ऑल्सो यू कैन राइट दैट आंसर. या तो आप इसे लिख सकते हैं ग्रीनी गल्फ इन फ्राइट एट द वास्ट साइज. Sir, हाँ बेटा प्लीज अपना माइक बंद कर लें जिसके यहाँ से आवाज आ रही है. At the huge size of ocean. ठीक है. Why do Greeny and her friends shake with fright? Why do Greeny and her friends shake with fright? अब आपको इसका आंसर देना है. इसका भी आंसर आपका अलग हो सकता है. आपके ऊपर डिपेंड करता है. कोई भी बताए. अनुप्रिया बताइए. and her friends shake with fright because the shark opened its mouth to bite them. Very good. Take. Anybody else who also want to suggest any answers? Aman Verma. Sir, Greeny and her friends shake with
because when start circling them, and one shark open his mouth wide to bite through the bubble. बिल्कुल एज है, मेन तो यही है, एज ए शार्क ओपन इट, एज ए शार्क ओपन इट्स माउथ टू बाइट देम, Bite through the bubbles. टू बाइट Greedy. Through the bubble. Throw the bubbles. Green. चलिए ठीक है, आप लोग भी इसमें और भी कुछ बढ़ा सकते हैं. इट इज ऑन यू ऑल, लेट्स सी हाउ यू ऑल कैन राइट द आंसर. नाउ इज इट क्लियर? शैल आई रफ द, शैल आई क्लियर द बोर्ड? Yes, sir. Okay. Now moving ahead, let us see, is there any more question? Yes, in the section C there is a 2 question. You all have to give a suitable title of the story. आपको क्या लगता है इस स्टोरी का क्या टाइटल होना चाहिए वो आप एक बार लिखें. And the first question is, imagine that the wind has wrapped you in a giant bubble. आप ऐसा इमेजिन करिए जो विंड है वो आपको रैप करने एक बड़े से बबल में, एंड ड्रॉप यू इनटू द अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में आपको डाल, आपको मतलब ड्रॉप कर दे. What would you like to explore in the ocean? आप ओशन में क्या खोजना चाहेंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? You all can write the answer of here. अब ये आंसर तो सीधा आपको देना है. Anyone who want to tell that what they want to explore there, they can tell. आप लोग अपना आंसर एक सेंटेंस आप लोग बता देंगे, मैं ये करूंगी, मैं ये एक्सप्लोर करूंगा, मैं ये एक्सप्लोर करूंगा, तो सभी का आंसर मैं मिला जुला के लिख दूंगा. Sir, तो जरा sir, I'll. हाँ बेटा. द अटलांटिक एडवेंचर क्या होगा? व्हाट मतलब क्या एक्सप्लोर करेंगे? इस तरीके से अटलांटिक एडवेंचर, एडवेंचरस चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे. क्या करेंगे? आई वुड लाइक टू, क्या आई वुड लाइक टू, you all can write the answer. The largest creature in the Atlantic Ocean. बेटा एक एक जिसे सभी का लिख लूंगा. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करेंगे फिर से बताइए. Which is the largest creature in the Atlantic Ocean? Sir. लार्जेस्ट. Sir. हाँ बेटा अभी आप भी बताइए. पहले लेट मी कंप्लीट. सर करती रहोगी तो इसको छोड़ दूं क्या? Largest creature in the Atlantic Ocean. हाँ बताइए अनुप्रिया. I would like to explore the dangerous creature. क्यों, उससे लड़ाई करना रहेगा क्या? No, sir. हाँ मुझे लगा शायद आप नहीं. चलो ठीक है. ये भी लार्जेस्ट क्रिएचर इन द अटलांटिक ओशन. लार्जेस्ट क्रिएचर क्या है पता है? जब वो अगर एक्सप्लोर करोगे तो क्या करेगा? Sir, whale. Sir, whale. Whale. क्या करेगा? वेल खा जाएगा. और ये भी डेंजरस sir. चीजें ही खोजेंगी. अरे समुद्र में सुनने में आता है डायमंड वगैरह भी होता है, उसको भी एक्सप्लोर करिए. अगर मिल जाएंगे तो बड़े आदमी हम लोग बन जाएंगे. Yes, sir. समुद्र Yes, sir. एक्चुअल में कितना समुद्र में डीप से डीप तक जाने की कोशिश करिए. देखिए कि और भी डीप में जाने पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे ट्रीज भी हैं, ये सारी Really चीजें है. समझ में आता है. क्या वो रियली में है? I would रियल explore मेनी थिंग्स आर देयर टू एक्सप्लोर. यस अतुल चौहान. यस अतुल. Sir, I would explore for बेटा आप लोग जैसे भी लिखें, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर, जो भी करना है आपको करना है. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर टू फाइंड आउट मेनी माउंटेन्स एंड वैलीज इन द ओशियन. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द डेंजरस क्रिएचर्स इन द ओशियन. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर सम ऑफ द फूड्स दैट कैन बी ईटेबल. क्या ईटेबल फूड भी क्या अवेलेबल हो सकते हैं? लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. आपके मन में क्या आता है, आपको क्या लगता है? बेटा ड्यूरिंग जब आपका टीचर बोल रहा हो उस बीच में नहीं बोलते, ये आदत सीखिए. मैं इधर समझा रहा हूँ, आप बीच में बोले जा रहे हैं. ठीक है, आपका सेशन फिलहाल क्लोज होने वाला है.
सभी के पास कई सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। अतुल चौहान का नाम भी लिया मैंने। अतुल चौहान आप बोल सकते हैं, बाकी बच्चों ने तो आंसर किया है कई बार। आपका सेशन क्लोज हो रहा है, जो बाकी बच्चे I would like explore maths. ओके, वेरी गुड। आई वुड लाइक एक्सप्लोर, क्या लिखा बेटा?